السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزوں، اگر آپ اس ویڈیو پر آ گئے ہیں، اگر آپ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ ویڈیو پورا دیکھیں تاکہ کوئی وہابی کوئی دیوبندی آپ کو اپنی طرف مائل نہ کر سکے، آپ کو وہابی اور دیوبندی نہ بنا سکے۔ اس لیے معاملہ تو یہ ہے کہ سنیوں کے لیے آئینہ کچھ اور ہے، ان کے پاس اپنے والوں کے لیے آئینہ کچھ اور ہے۔ آئیے، یہ بھی گزر چکے ہیں، ان کا نام ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، اور غالباً جہاں تک مجھے لگتا ہے یہ بامبے کی ہی اسپیچ ہے۔ آپ کے ہاں کا کون سا ایک مشہور گراؤنڈ ہے، یہ YMC کی شاید اسپیچ ہے، ذرا سن لے۔ عید میلاد النبی ایک نئی عید ہو گئی ہے، کیا اس کا حکم دیا محمد رسول اللہ نے؟ یفعلون ما لا یؤمرون، وہ اپنی ہی ایجاد کردہ روایات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ بدعات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ رسومات ہیں، ان پر لگے ہوئے ہیں اور دعوے کرتے ہیں اللہ سے محبت، رسول کے عشق کے، جبکہ ان کے عمل میں نہ اللہ کی اطاعت ہے نہ رسول کا اتباع ہے۔ اب جب ایسی صورت پیدا ہو جائے تو کیا کریں؟ فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، تو جو مسلمان بھی ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے، اپنی طاقت سے، وہ مومن ہوگا۔ ومن جاہدہ بلسانہ فہو مومن، اور جو ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنی زبان سے، وہ بھی مومن ہوگا۔ وہی تین درجے۔ ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، دل سے نفرت رکھ کر جو جہاد کرے گا بالقلب، وہ بھی مومن ہوگا۔ فما وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر اسرار نے کیا کہا کہ عید میلاد النبی ایک نئی عید ہو گئی ہے، حالانکہ نئی نہیں ہے، بہت پرانی عید ہے، یہ تو عیدوں کی عید ہے، یہ عید نہ ہوتی تو کوئی عید نہ ہوتی۔ سبحان اللہ، یہ تو عیدوں کی عید ہے، تو یہ نئی کہاں ہوئی؟ یہ تو ساری عیدوں کا منبع ہے، ساری عیدوں کی اصل یہی عید ہے۔ اور اگر یہ عید میلاد النبی نئی عید ہوتی نا، آپ کو ایک نئی نالج دے رہا ہوں، ترمذی شریف سیاستہ کی کتاب ہے، اور حدیث کی کتابوں میں سیاستہ میں تیسرے درجے پر ہے، تیسرے نمبر پہ یا چوتھے نمبر پہ، بعض نے مسلم کے بعد کہا، بعض نے ابو داؤد کے پاس کہا، لیکن بہرحال سیاستہ کی معتبر کتابوں میں امام ترمذی نے ایک باب ہی قائم کیا، باب کا ہی نام ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب کا نام ہی ہے میلاد النبی، جا کے دیکھ لیں۔ اب جو دلیل دی ڈاکٹر اسرار احمد نے، ان کی دلیل یہ تھی کہ عید میلاد النبی ایک نئی عید ہو گئی ہے، اس کا ذکر حدیث میں کہاں ہے؟ یعنی جو چیز حدیث میں نہ ہو وہ سب بدعت کے خانے میں ان کے آ جاتی ہے۔ میں کچھ چیزیں یہاں بتا رہا ہوں جس کا ذکر حدیث میں نہیں تھا، یہ بات کی چیزیں ہیں، پہلے ان چیزوں کو وہ بدعت قرار دیں اور اس کے بعد پھر میلاد النبی کی طرف بڑھیں۔ مثلا ڈاکٹر اسرار صاحب خود ایک اجتماع کی شکل میں اسٹیج لگا کر رات میں ہولی جان مائی کے سب چیزوں پہ تقریر کر رہے ہیں۔ کیا رسول اللہ اور صحابہ سے اس طرح کے اجتماعات میں تقریر کرنا ثابت ہے؟ نہیں۔ مساجد بہت خوبصورت بنائی جا رہی ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی مساجد کا کوئی تصور نہیں تھا، بلکہ حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ رسول اللہ نے خود فرمایا، سری حدیثیں ہے، سرکار نے کہا کہ اپنے عبادت گاہوں کو حسین و جمیل نہ بنائے، مگر سب سے زیادہ خوبصورت ایئر کنڈیشن یہی بنا رہے ہیں۔ مسجدوں میں گنبد بنانے کا دستور نہیں تھا، اور تبلیغ کے لیے جو خود یہ نور ٹی وی، پیس ٹی وی، یہ جو ٹی وی چینل چلا رہے ہیں، کیا یہ سنت سے ثابت کر سکتے ہیں اس چیز کو؟ اماموں اور مولموں کی جو تنخواہیں دی جا رہی ہے، ان کے ورک کر رہے ہیں، ان کے عقائد کا پرچار کر رہے ہیں، ان کے لیے جو تنخواہیں انہوں نے مقرر کی، کیا رسول اللہ کے زمانے میں ایسی تنخواہیں مقرر تھی؟ یہ ثابت کر سکتے ہیں؟ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ بہرحال لیکن سب سے خطرناک جملہ ڈاکٹر اسرار احمد کا کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ جو میلاد النبی منا رہے ہیں ان کی اپنی ایجادات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، اور جب ایسی صورت آ جائے تو کیا کرو؟ ان کے ساتھ ہاتھ سے جہاد کرو، یعنی میلاد النبی جو منا رہے ہیں ان سے لڑو، طاقت سے ان کو دباؤ، اور اگر طاقت میسر نہ ہو، یعنی تم تعداد میں کم ہو، سنی زیادہ ہو، میلاد منانے والے زیادہ ہو، تو زبان سے بولو، اور زبان کی بھی پوزیشن نہ ہو تو کم سے کم دل میں نفرت رکھو، نفرت کے ساتھ۔ مگر آئیے میں ایک تصویر کا دوسرا رخ بتاتا ہوں۔ جس رات پوری انسانیت کفر و شرک سے پاک ہوئی، وہ رات، وہ شب، وہ میلاد کی رات، وہ تو بدعت ہے، مگر جس رات ان سعودیوں نے قبضہ کیا، جس دن ان سعودیوں نے اس کو قبضے میں وہ سعودیہ کو لیا، ترکی حکومت کے ساتھ دھوکہ دھڑی سے حکومت جو حاصل کی، اس دن کو آج بھی مناتے ہیں اور انتہائی بےہودہ طریقے سے مناتے ہیں۔ مگر اسرار احمد ہو چاہے ذاکر نائک ہو، ان کی زبانیں بند ہے، ان کی زبانوں سے ایک بار بھی نکلتا کہ بھائی ایک بار قبضہ کر لیا ٹھیک ہے، یہ ہر سال اس کا جشن کیوں مناتے ہو؟ کیا بات ہے، واہ واہ۔ اور جشن بھی کتنا بےہودہ، آپ تو جلوس نکالتے ہیں اور جلوس میں کیا کہتے ہیں؟ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، اللہ کی پاکی اور بلندی بیان کرتے ہیں،
नारे रिसालत या रसूलल्लाह अपने नबी को याद करते हैं, मगर आइए ये अपना नेशनल डे कैसे मनाते हैं, आइए इसकी झलक दिखा रहा हूं मैं, ये सिर्फ झलक है। आप झंडियां ले जाएं, शिर्क बिदअत कुफ्र सब, ये बच्चे इनके यहाँ के ये बड़े बड़े सब झंडियां लेके निकल रहे हैं, नेशनल डे मनता है इनके यहाँ। ये पुलिस वाले हैं जो तोहफे बांट रहे हैं एक दूसरे को। अब यहाँ रोक रहा हूं मैं थोड़ा सा, ये किंग अब्दुल्ला है, खादिमुल हरमैन शरीफैन है, इनका लक़ब इतना भारी भरकम है कि उठाए नहीं उठता है। खादिमुल हरमैन शरीफैन, हरम के दोनों हरम के, हरमैन दोनों हरम, मदीने का हरम मक्के का हरम, दोनों की ये खादिम है। मगर नेशनल डे के दिन क्या कर रहे हैं, लड़कियों के साथ रक्स कर रहे हैं। ये एक झलक दिखाई मैंने उस नेशनल डे को, बादशाह सलामत नाच रहे हैं, इनकी पूरी अवाम मसरूर है, नाच रही है, रक्स कर रही है, ये सब जायज़। इस पर एक भी गैर मुकल्लिद देवबंदी की एक तकरीर भी आपको नहीं मिलेगी, ढूंढ जाइए। और अगर ऐसा कोई इनके मौलाना ने, और मैं जिम्मेदार मौलानों की बात कर रहा हूँ, इनके छुटपइयों की बात नहीं कर रहा हूँ, हिम्मत हो तो डॉक्टर जाकिर नाइक खुलकर रद्द करे कि खादिमुल हरमैन शरीफैन बहुत बड़ा बिदअती है, मुशरिक है जो नेशनल डे मनाता है। तौसीफ रहमान तकरीर करें और नाम लेकर कहें, जिस तरह नाम ले लेकर हमारे उलमा को बुरा भला बोला जाता है, उसी तरह हिम्मत हो। और अगर वाकई तौहीद के मानने वाले हो, मुवाहिद कहते हो अपने आप को, सच्चा जानते हो अपने आप को, तो हिम्मत हो तो ऐसी तकरीर करें, नेट पर डालें, हम तक भेजें कि खादिमुल हरमैन शरीफैन और जितनी सऊदिया की आले सऊद अवाम है, वो सब के सब जो नेशनल डे में रक्स करती है, वो सब बिदअत और शिरक है। एक तकरीर आपको ऐसी नहीं मिलेगी। और इसरार अहमद की ज़बान में बोल रहा हूँ, ये तो मरकर मिट्टी में मिल चुके हैं, लेकिन इनके चाहने वाले तो मौजूद है। उनसे कहूँगा कि डॉक्टर इसरार की ज़बान में हिम्मत हो तो ये भी कहो कि अगर खादिमुल हरमैन शरीफैन न माने तो क्या करो, फमन जादहू बेयदिही, हाथ से जिहाद करो। क्या बात, हिम्मत हो तो वहाँ ये फतवा लगाओ, लेकिन वहाँ नहीं लगाएंगे क्योंकि वहाँ के रियालों के टुकड़ों पे तो हम पल रहे हैं। क्या बात, उन पे फतवे लगेंगे तो हमारे टुकड़े बंद हो जाएंगे, हमारी रोजी रोटी तो सब वहीं से वाबस्ता है हमारी। और उस रोजी रोटी के लिए तो हमने इतना लड़ा कि देवबंदियों पे हुक्म कुफ्र लगा के उनको भी वहां से खारिज किया है अभी। क्या बात, मैं सब दलील में कह रहा हूँ, अल कौलुल बलीग फी तहजीर जमात तबलीग किताब पढ़ लीजिए, मेरे पास मौजूद है। इतनी मोटी किताब लिखी गई और कहा गया, ये गैर मुकल्लिदीन ने लिखी वहां की, कहा कि देवबंदी भी बिदअती है, ये भी मुशरिक है। फर्क क्या है, जो बरेलवी लोग हैं वो तो गरीब नवाज गौसे आजम को मुश्किल कुशा कहते हैं, ये अशरफ अली थानवी और गंगोही को मुश्किल कुशा कहते हैं। और मजेदार बात क्या उस किताब की बताऊं मैं, अरबी जबान में है और वहां के शायद बड़े बड़े तुर्रम खां मुफ्तियों ने जमा करके लिखी है। मैं उस किताब को पढ़ा तो मुझे आला हज़रत की करामत पर यकीन कामिल हो गया, कामिल यकीन हो गया। कल तक ये कहते थे कि आला हज़रत ने जो हुस्सामुल हरमैन लिखवाई है, हुस्सामुल हरमैन लाई है, तो हमारी उर्दू की इबारतों को गलत पेश किया गया, उर्दू की इबारतों को अरबी में गलत बताया गया। मगर ताज्जुब जाइन कीजिए आप, वहाँ के मुफ्तियों ने उर्दू सीखी, सीखने के बाद इनकी किताबें पढ़ी और उसको फिर अरबी में ढाला और ढाल के इन पे फतवे लगाए, तो उन्होंने उर्दू से जो अरबी किया वही अरबी है जो आला हज़रत ने की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। मतलब ये हुआ कि वही थी, इबारत तो वही थी। तो ये अब तक, लेकिन दाल रोटी का इतना बड़ा झगड़ा है कि अब आपस में रस्साकशी है और हम इस रस्साकशी में नहीं है। क्यों? हमारा तो हाल ये है कि हमारे इमाम ने हमें पैगाम दिया कि तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे ना डाल, क्या बात, झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न इमामुल अंबिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर अब आइए, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ और फिर गुजारिश कर रहा हूँ उन लोगों से, अगर मेरी तकरीर में कोई सख्त जुमला आ जाए तो सख्ती को मत देखिए, मेरी बात को देखिए कि मैं अपने माफी ज़मीर को किस तरह अदा करना चाहता हूँ और आप तक क्या पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ वो लोग जो धोखे में आकर इन जमातों में चले गए, अपनी आंखों को खोले, तासुब की आईनक को उतारे और समझे कि हमें किन चीज़ों से फरेब दिया गया है। अब हो सकता है कोई तावील निकाले, वो बादशाह का अमल है, वहाँ की अवाम का अमल है, उलमा का अमल नहीं है, ये तावील होंगी ना। मगर आइए उन बादशाहों के बारे में इनका फरमान क्या है, इनके उलमा का, वो भी तो सुन लीजिए। मुबारकबाद के लायक है ये सऊदी अरब की हुकूमत, मुबारकबाद के लायक है ये सऊदी अरब की हुकूमत कि जब अक़वाम मुत्तहिदा में
मुल्कों ने अपने अपने दस्तूर को पेश किया। दुनिया की ये वाहिद हुकूमत है जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में दस्तूर किताबुल्लाह को पेश किया कि ये कुरान अल्लाह ने उतारा है। अगर मुल्क का दस्तूर हमें लिखने की जरूरत नहीं है, अर्श वाले ने उतार दिया है। ये तौसीफुर रहमान साहब सऊदीया में ही बैठे हुए आजकल, वहीं के टुकड़े खा रहे हैं। ये कहते हैं मुबारकबाद के लायक है सऊदी अरब की हुकूमत कि जब अक़वाम मुत्तहिदा में लोगों ने दस्तूर पेश किया तो सऊदीया ने क्या पेश किया? कुरान किताबुल्लाह, हमारा दस्तूर ये है। हमसे मुतालबा है कुरान और हदीस में मिलादुन नबी नहीं, तो दस्तूर पेश करने वालों से भी हमारा मुतालबा है नेशनल डे मनाना कुरान और हदीस में कहाँ है? भाई तुम्हारा दस्तूर है ना, और मुबारकबाद के लायक है। अब आइए इनको भी सुन लें। क्या मौजूदा दौर में सही अकीदा की जमात बनाना ज़रूरी है या नहीं? मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सही अकीदा के लोग मौजूद हैं और मुसलमान मौजूद। आप ममलकत सऊदी अरबिया के अंदर रहते हैं, आप बताएं यहाँ कितनी जमातें काम कर रही हैं? किसी जमात का पता चलता है? यहाँ जमीयत तहफ़ीज़ुल कुरान है, यहाँ जमिया खैरिया है, यहाँ जमियत फलाह है। यानी एक अमीर, एक बादशाह के तहत लोग हैं, अमीरुल मुस्लिमीन के तहत हैं और अल्हम्दुलिल्लाह किताब और सुन्नत की रोशनी में चल रहे हैं। यानी एक अमीर, एक बादशाह के तहत लोग हैं, अमीरुल मुस्लिमीन के तहत हैं और अल्हम्दुलिल्लाह किताब और सुन्नत की रोशनी में चल रहे हैं। मेराज रब्बानी से क्या सवाल किया गया? क्या जमात नहीं बनाने की ज़रूरत है? कहा कोई ज़रूरत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जमात सुन्नत पर काम कर रही है। एक अमीरुल मोमिनीन है, कौन? अब्दुल अजीज़, अब्दुल्ला इब्न अब्दुल अजीज़। और अमीरुल मोमिनीन क्या कर रहे हैं? रक्स कर रहे हैं लड़कियों के साथ। तो भाई तुम्हारे नज़दीक तो ये मुसल्लम लोग हैं भाई, काबिल ताज़ीम, काबिल इज्जत लोग हैं। तो ये तावील देकर अब धोखा मत दीजिए कि साहब वो बादशाह का मल, अवाम का मल। अच्छा चलिए, वो तो आप ही के हम अकीदा है ना। देखिए मैं एक खास बात बोल रहा हूँ, गौर से सुने। जैसे हुजूर अमीन मिल्लत, मोइन मिल्लत यहाँ तशरीफ़ फरमा है, हज़रत भी सुन्नी, मैं भी सुन्नी, मैं हज़रत का खादिम, और इस वक्त हज़रत मेरी सरपरस्ती कर रहे हैं। बिल फ़र्ज़ खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे मुझसे कोई यहाँ स्टेज पर इस मसनद पे कोई गलती हो जाए, खिलाफ शरा एक अमल हो जाए, हज़रत की सबसे पहली ज़िम्मेदारी क्या होंगी? मुझे उससे रोकेंगे, तौबा कराएंगे, रुजू कराएंगे। ये जो हमारे अकाबिर बुजुर्ग बैठे हैं, ये इसलिए नहीं बैठे कि इनको माज़अल्लाह इल्म नहीं है, मेरी तकरीर सुनने आए हैं। ये दर हकीकत बैठते इसीलिए है कि मुक़र्रिर से गलती हो जाए तो उसकी इस्लाह हो जाए। क्या बात है, ये मकसद ये होता है। ये मुफ्तियान इकराम, ये हमारे बुजुर्ग है, हमारे सरों के ताज है। तो ये बैठे इसीलिए है, ये सरपरस्ती इसीलिए है कि गलती हो जाए तो मैं रुजू करूँ, ये मुझसे रुजू करवाए। बिलफर्ज मैं गलती करूँ और ये रुजू ना करवाए तो हर कोई कहेगा कि भाई फारूक रज़वी उन्हीं का अपना आदमी था, उसको समझा सकते थे, उन्होंने नहीं समझाया, और मैं उनका अपना हूं तो समझाना भी आसान है। भाई आपसे हमारे अकीदे में कोई इत्तेफाक नहीं, आपके और हमारे नजरियात नहीं मिलते, तो आप हमें समझाने के लिए दुनिया भर की डीवीडियां निकाल रहे हैं, और जो आपके हम अकीदा उनको समझाने के लिए एक तकरीर भी नहीं है आपके पास, तो उनको कब समझाओगे आप? अब आप सुनिए, आपने लाइटिंगें लगाई है यहाँ पर, किस लिए लगाई भाई? घरों में सजावटें की है ना आप लोगों ने, मैं आपसे पूछ रहा हूँ किस लिए की आपने? सरकार की आमद पे ना। मगर अफसोस कितनी बदनसीबी है इन लोगों की, हम तो अपने रसूल की आमद पे लाइटिंग लगाते हैं, ये नए साल की आमद पे रोशनाई करते हैं। अब मैं जो चीज़ दिखा रहा हूँ बिल्कुल चौंका देंगी आपको, नई चीज़ है बिल्कुल। ये हमारी खुशनसीबी, ये हमारी बुलंद बख्ती कि हम अपने नबी की आमद पर चिरागा करते हैं, और ये चिरागा कब करते हैं? नए साल की आमद पर। इनके नज़दीक नए साल का जश्न मनाना 31 दिसंबर का जश्न तो जायज़ है, नबी की आमद का जश्न बिदअत और हराम है। 31 दिसंबर को दुबई में फटाकों का शो हुआ, और जिस कदर नए साल की आमद में 12 बजे एग्जिट 12 जब कांटे पे आए, मर्द औरत मिक्स, सब इन्हीं के अकायद के लोग, सब गैर मुकल्लिदीन जो तौहीद के ठेकेदार बने फिर रहे हैं दुनिया भर में, और जो मिलादुन नबी के मनाने वालों को मुशरिक धड़ल्ले से कह रहे हैं। इन नाबिकारों ने क्या किया? दुबई में अरबों रुपए, करोड़ों नहीं अरबों रुपयों के पटाखे फोड़े, और ऐसी आतिशबाजी की गई है कि ऐसी आतिशबाजी की गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको बतौर रिकॉर्ड दर्ज कर दिया गया है। आइए जरा उसकी एक झलक दिखा रहा हूं, ये वीडियो बहुत लंबा है, नेट पे डाल दिया गया है, देखिए।
یہ ایک جھلک تھی, یہ بہت لمبی کلپ ہے. کئی گھنٹے, 1-2 منٹ نہیں, کئی گھنٹے آتش بازی ہوئی, اربوں خربوں, گرینس ریکارڈ میں اس کا نام آ گیا, مگر اب تک ان کے ملاؤں کی زبانیں خاموش ہیں. ایک بھی مولانا کی کوئی تقریر اب تک نیٹ پر نہیں ملیں گی آپ. اور میں پھر عرض کر رہا ہوں, تمہیں حلال کمائی کے اپنے ذاتی پیسوں سے لوگ اپنے گھر میں نبی کی آمد کی خوشی میں چند لائٹ جلا لے وہ تو کھلتے ہیں, مگر یہ عیاش کی کمائی کے خربوں روپے اربوں روپے کے پٹاخے آپ کو ہضم ہو جا رہے ہیں. چلیے اب آئیے, ان سب کا مفہوم کیا تھا ان لوگوں کا کہ میلاد النبی حدیث سے ثابت نہیں ہے. میں کہتا ہوں حدیث سے نہیں بلکہ قرآن سے ثابت ہے. سبحان اللہ. کئی مقبول انبیاء کے قرآن نے میلاد کے ذکر کیے. سورہ بقرہ اٹھائیں, آیت نمبر 30 پارہ 1, اللہ اپنے نبی کو ایک نبی کے میلاد کا ذکر یاد کروا رہا ہے, یاد دلوا رہا ہے. سبحان اللہ. اپنے نبی کو یاد دلوا رہا ہے, محبوب میں ایک نبی کا میلاد کا ذکر کر رہا ہوں, اس کو یاد کیجئے. جب اس کے میلاد کا میں ذکر فرشتوں سے کر رہا تھا تم وہاں موجود تھے اس میلاد کی مجلس میں. اے محبوب تم بھی تو موجود تھے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ, سبحان اللہ. محبوب یاد تو کیجئے جب آپ کا رب فرشتوں سے کہہ رہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پر ایک خلیفہ بھیجنے والا ہوں. یہ حضرت آدم کی میلاد کا ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ اور آدم کی میلاد کا ذکر کہاں ہو رہا ہے؟ آسمانوں میں, فرشتوں کے درمیان, نبی کی موجودگی میں. اور رب ذکر کر رہا ہے فرشتوں سے, دیکھو میں آدم کو پیدا کرنے والا ہوں. پارہ نمبر 20 سورہ قصص, قرآن میں جائے اس کا مطالعہ کرے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا پورا ذکر قرآن نے بیان کیا. موسیٰ علیہ السلام کس طرح اس دنیا میں تشریف لائے, ان کی والدہ نے پھر ان کو کس طرح ٹوکری میں رکھا, کس طرح دریا میں بہا دیا, دریا نیل میں. پورے ان کے میلاد کا ذکر, ان کی پیدائش کا ذکر قرآن نے اس کو بیان کیا. پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت 35 اور 36 میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت اور میلاد کا ذکر کیا گیا. اسی طرح پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیات 35 اور 36 میں حضرت مریم کا ذکر کیا, ولادت کا, ان کی میلاد کا ذکر کیا. اور اسی پارے سورہ آل عمران آیت 38 اور 41 میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی میلاد النبی کا قرآن نے ذکر کیا. اسی طرح پارہ نمبر 16 سورہ مریم آیت 16 سے لے کر 35 تک رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد النبی کا پورا ذکر کیا. تو اگر میلاد کا دن بھلانے کے لائق ہوتا ہے, اس کی کوئی اہمیت نہ ہوتی, نبی کی جلوہ گری, نبی کی پیدائش کی کوئی اتنی ویلیو نہ ہوتی, تو قرآن نے ان انبیاء کے ذکر اور ان کی پیدائش کا ذکر کیوں کیا؟ ان کی پیدائش کا ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کو نبی کی میلاد کا ذکر کرنا پسند ہے. اور خود حضرت عیسیٰ نے اپنی میلاد کا ذکر کیا اور ان الفاظوں میں کیا. پارہ 16 سورہ مریم آیت 15 میں حضرت عیسیٰ کہتے ہیں, قرآن ان کا جملہ نقل کر رہا ہے, بیان کر رہا ہے, وَسَلَامٌ عَلَيْهِ یوم وَلِدَ وَیوم یموت, سلامتی ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا, اور سلامتی ہے اس دن پر جس دن مجھے موت آئیں گی. پیدائش کے دن پر سلامتی. اب دیکھیں یہاں سے ایک مجاز بھی ملا کہ نبی جس دن پیدا ہوتا ہے وہ دن سلامتی کا ہوتا ہے, اور نبی خود اپنی پیدائش کے دن پر سلام بھیج رہا ہے. تو حضرت عیسیٰ اپنی پیدائش کے دن پر سلام بھیجے, تو جس دن عیسیٰ کے آقا نبی آئے تو کیا ہم سب سلام نہ بھیجیں؟ سبحان اللہ. اور آگے آئیں, اب رسول اللہ کے میلاد کا ذکر قرآن نے کیا مختلف جگہوں پر. میں چند آیت تلاوت کر رہا ہوں. پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت 164 میں اللہ اپنے محبوب کا میلاد بیان کرتا ہے. ارشاد ہوتا ہے, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیج دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سورہ مائدہ پارہ 6 آیت 15 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے, قد جاءکم من اللہ نور, اور تحقیق اللہ نے اپنی جانب سے ایک نور کو پیدا فرمایا, ایک نور کو جلوہ گر کیا, سبحان اللہ, ایک نور کو بھیجا. سورہ توبہ آیت نمبر 128 میں اللہ اپنے نبی کا میلاد کا یوں ذکر فرماتا ہے, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ فرماتا ہے تحقیق تمہاری طرف ایک رسول آئے جو تمہارے ہی نفسوں میں سے ہے, تمہیں میں سے ہے, اور ان کا حال کیا ہے, تمہاری اچھائی اور تمہاری بھلائی کے خواہش مند, اس کے حریص ہے, مومنوں پر نہایت ہی رحمان شفیق اور بہت زیادہ رحم کرنے والے. اب قرآن نے یہ بھی ذکر کیا کہ نہیں کیا؟ اور خود اللہ کے رسول نے اپنے میلاد کا ذکر فرمایا. سرکار نے اپنے میلاد النبی کے دن کو ہمیشہ یاد رکھا. ہم تو سال میں ایک بار اس دن کو خاص منا لیتے ہیں 12 ربیع الاول کو, لیکن نبی کا حال تو یہ تھا کہ ہر پیر کو آپ روزہ رکھتے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. چنانچہ مسلم شریف جلد نمبر 2
सफ़ा 88 किताब सियाम हदीस नंबर 2646 पर हज़रत कतादा रदियल्लाहु ताला से रिवायत है, अन अबी कतादतल अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुइला अन सौम यौमिल इस्नैन। हज़रत कतादा अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह आप हर पीर को रोज़ा रखते हैं, हर पीर के दिन आप रोज़ा रखते हैं, सरकार इसका सबब क्या है? फ़क़ाल, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, फ़ीह उलिद्तु व फ़ीह उन्ज़िला अलैया, मैं इस दिन इसलिए रोज़ा रखता हूँ कि इसी दिन मैं पैदा हुआ था और इसी दिन मुझ पर पहली वही नाजिल हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूँ। अब अंदाजा लगाए, नबी हम गुनाहगारों के बीच आए तो अपने रब का शुक्र कर रहे हैं कि मौला तूने मुझे अपने उम्मतियों में भेज दिया ताकि मैं इनके लिए रहमान और रहीम भी बन जाऊं, इनके लिए शफी भी बन जाऊं। तो नबी तो अपने आने पर शुक्र करे और नबी की नेमत हमें मिले तो हम शुक्र ना करें। हम पे कितना जरूरी है कि हम नबी की आमद का शुक्र मनाएं। इस हदीस को इमाम मुस्लिम के अलावा मुस्नद अहमद में इमाम अहमद इब्न हम्बल ने जिल्द नंबर 5 सफ़ा 296 हदीस नंबर 22,590 पर लिखा। इमाम बहकी ने सुनन कुबरा के अंदर जिल्द नंबर 4 सफ़ा 286 हदीस नंबर 8182 पर लिखा। इमाम नसाई ने भी इसको सुनन कुबरा जिल्द 2 सफ़ा 146 हदीस नंबर 2777 और इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक ने जो इमाम बुखारी के उस्ताद है अल मुसन्नफ के अंदर जिल्द नंबर 4 सफ़ा 296 हदीस नंबर 7865 पर लिखा। अब ये बताइए, रसूलुल्लाह की जलवागरी हुई, सरकार तशरीफ़ लाए। जब सरकार तशरीफ़ लाए तो हज़रत आमना कहती है, आपने सुना है ना उलमा से, मैं सिर्फ एक ज़िम्नन बात कह रहा हूँ और उससे एक नतीजा बताना चाहता हूँ। हज़रत आमना फरमाती हैं, मेरे साहबजादे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी हुई, मैंने देखा है कि रोशनी ज़ाहिर हुई, शाम के महलात भी मैंने देख लिए, फरिश्तों की बारात उतरी, काबा झुका। ये सारे वाक़यात ये जो हम उलमा से सुनते हैं और हम तक पहुँचे, किस ज़रिए से पहुँचे, कैसे पहुँचे आप तक, बताइए। हज़रत आमना से सहाबा ने सुना होगा या उस ज़माने की औरतों ने या उस ज़माने के मर्दों ने, उनसे सहाबा ने सुना होगा, सहाबा ने ताबई को बताया, ताबई ने तबे ताबई को बताया, तबे ताबई ने अइम्मा को बताया, अइम्मा ने उलमा को बताया, उलमा हमें बता रहे हैं। किताबें लिखी गई, हदीसों की किताबों में नकल किया गया। तो जब जब सहाबा ये नकल करते थे, रिवायत दर रिवायत चलती थी, तो मालूम हुआ कि मिलाद तो नबी के ज़माने से ही होता आ रहा है। सुभान अल्लाह। तो कौन कहता है कि नबी के जमाने में मिलाद नहीं था? अब ये बार बार जुमला कहते, सहाबा ने मनाया क्या, नबी ने मनाया क्या, हुजूर के जमाने में, हुजूर के जमाने में मिलाद नहीं, हुजूर के जमाने में। मैं कहता हूं ये जमाना किसका है? क्या बात, सुभान अल्लाह। तुम कहते हो नबी के जमाने में नहीं होता, अरे ये जमाना किसका है? नबी ने कहा मैं खातमन नबीन बनाकर भेजा गया हूं, अब मेरे बाद किसी नबी का जमाना नहीं आने वाला, ये पूरा क़यामत तक मेरा ही जमाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। तुमने तो महदूद कर दिया अपने नबी के जमाने को। हमारे नबी का जमाना महदूद नहीं है, ये जमाना भी तो नबी का है। हाँ, ये अलग बात है कि जिस तरह तुमने तकारीरों के अंदाज में तब्दीलियां लाई, जिस तरह तबलीग के अंदाज में तब्दीलियां लाई, हमने भी सहाबा से सीखा, सहाबा से लिया और हालात के हिसाब से उसमें हमने भी तब्दीलियां लाई। मगर जिस तरह तुम्हारा फेल बिद्दत नहीं तो ये भी बिद्दत नहीं, और अगर ये बिद्दत है तो उसको भी बिद्दत बोलो। बात समझ में आ रही है? और सहाबा ने रिवायत किया। अब मुतअद्दिद हवाले हैं। हजरत शिफा रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये कौन है मालूम है आपको? हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की वालिदा है। सुभान अल्लाह। सरकार पर ईमान लाई। ये फरमाती है कि जब हजरत आमना रदी अल्लाह ताला अन्हु को विलादत का दर्द उठा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी थी, मैं दाई के फराइज अंजाम दे रही थी। सारे मामलात इन्होंने देखे, नबी तशरीफ लाए, सजदे में थे। रिवायत करने वाली हजरत शिफा कहती है कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में उठाया, देखा तो आपके लब हिल रहे थे, कान लगाया तो आप फरमा रहे थे रब्बे हबली उम्मती, सुभान अल्लाह, रब्बे हबली उम्मती, ऐ परवरदिगार मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर। कहती है कि मैंने नाप बुरीदा पाया, खतना शुदा पाया, मैंने गुस्ल देना चाहा, आवाज आई शिफा गुस्ल न दो, हमने अपने नबी को तैयब व ताहिर पैदा किया। सुभान अल्लाह। कहती है फिर मैंने देखा कि रसूलुल्लाह मुझसे जुदा हो गए, मैं घबराई। हजरत आमना ने आंखें खोली, कहा शिफा मेरा साहबजादा कहाँ है? कहा मुझे नहीं मालूम, अचानक गायब हो गए। तभी किसी कहने वाले ने कहा गम ना करो, फरिश्ते ले गए हैं नबी को उनकी हुकूमत दिखाने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ क्या कहते हैं? किताब शिफा में इमाम काजी अयाज लिखते हैं, और इमाम काजी अयाज कौन है? जिनके बारे में इब्ने तैमिया कहता है इनकी पैरवी और इत्तिबा में नजात है।
क्या बात है। वो इमाम काजी अयाज खसाइसुल कुबरा में इमाम जलालुद्दीन सयूती लिखते हैं, अल मुहिबुल लदुनिया में इमाम कस्तलानी लिखते हैं, अबुल इमाम अब्दुर रहमान इब्न जौजी अल वफा में लिखते हैं, मुतअद्दिद उलमा ने यहाँ से वहाँ तक लिखा कि हजरत अब्दुर रहमान इब्न औफ कहते हैं कि साहबा इकराम आते मेरे घर, कहते हैं कि अब्दुर रहमान तुम्हारी वालदा शिफा है। हम कहते क्या बात है, क्यों मेरी वालदा से मिलना चाहते हो? अर्ज करते कि हम हजरत शिफा से इसलिए मिलने आए कि हम अपने नबी की विलादत का जिक्र करें, सुभान अल्लाह, सुभान उनसे अल्लाह। नबी की पैदाइश का तस्करा सुने। तो कहते हैं कि मैं कमरे में अंदर जाता, अपनी वालदा हजरत शिफा से कहता कि कुछ मेरे दोस्त कुछ अहबाब आए हैं, आप उस वक्त मौजूद थी जब नबी की विलादत हुई, नबी की जलवागरी हुई, वो हालात सुनना चाहते। हजरत शिफा तशरीफ लाती, एक पर्दा हायल हो जाता, ये सब बैठ जाते और बैठने के बाद हजरत शिफा नबी की विलादत का जिक्र करती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इसका मतलब क्या हुआ, मिलादुन नबी मनाना तो पहले से चला आ रहा है। अच्छा, खुद नबी ने अपनी मिलाद का जिक्र किया है। आइए जरा सुने मजमउस ज़वाइद हज़रत इमाम हैसमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिल्द नंबर 8 सफ़ा 290 हदीस नंबर 13842 व अन अबी अमामा, वो कहते हज़रत अमामा रज़ियल्लाहु ताला रिवायत करते काला कुल्तु या नबी अल्लाह, वो कहते हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, किसी ने, मा कान अव्वलु बदाई अमरिक, पूछने वाले ने पूछा या रसूलुल्लाह आप अपने इब्तिदाई हालात बयान फरमाए, दूसरे लफ्ज़ों में आप अपनी विलादत का जिक्र करें। काल, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, दावत अबी इब्राहिम, मैं इब्राहिम की दुआ हूँ। सुभान अल्लाह। इब्राहिम ने खाने काबा तामीर की और दुआ की, रब्बे कायनात, जो कायनात का सबसे अफजल तरीन शख्स है, जिसके सबब से तूने कायनात की तख्लीक की, जो नबी तमाम नबियों का सरदार है, रब्बे कायनात उसको मेरी नस्ल में पैदा फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाते मैं इब्राहिम अपने बाप की दुआ हूँ, वह बुशरा ईसा अलैहिस्सलाम, और मैं ईसा की बशारत हूँ। सुभान अल्लाह। जो ईसा ने बशारत दी थी कि मेरे बाद एक अजीम नबी तशरीफ लाने वाले। वरात उम्मी अन्नहु यखरजु मिन्हा नूरुन अदाअत मिन्हु कुसूरुश शाम, मेरी विलादत हुई तो फरमाते कि मेरी वालदा से एक नूर जाहिर हुआ। वो नूर कौन था? वो मैं खुद था, यानी रसूल। कहते मेरी असल क्या थी? नूर। और फिर एक रोशनी हुई, एक नूर बिखरा, तो मेरी वालदा ने मुल्क शाम के महलात को उस नूर की रोशनी में देख लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी अपनी विलादत का जिक्र कर रहे हैं। और इस हदीस को और किन लोगों ने लिखा? इमाम अहमद ने मुस्नद अहमद में लिखा, इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक के अंदर जिल्द नंबर 2 सफ़ा 656 हदीस नंबर 4178 पर लिखा, और ख़ुद गैर मुक़ल्लिदीन के मुसल्लम बुजुर्ग व पेशवा अल्लामा इब्न कसीर ने तफसीर कुरान, जो उनकी कुरान की तफसीर मशहूर है तफसीर इब्न कसीर के नाम से, उसके जिल्द 4 सफ़ा 361 पर, और इब्न हिशाम ने जिल्द नंबर 1 सफ़ा 302 पर, खसाइसुल कुबरा में इमाम जलालुद्दीन सयूती ने भी नकल किया। एक और हदीस आप सुन ले कि नबी अपनी मिलाद का जिक्र कैसे फरमाते हैं। इमाम तिरमिज़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी जामे के अंदर जिल्द नंबर 5 सफ़ा 543 किताबुद दावा हदीस नंबर 3532 पर पूरी सनद के साथ लिखते हैं, अनिल मुत्तलिब ने अबी वदा काल, कहते मुत्तलिब बिन अबी वदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते, कहते जाअल अब्बास इला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़कान्नहु समिअ शैया, कहते हज़रत अब्बास हुजूर के चचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, और इसलिए इस गरज से हाजिर हुए कि किसी ने नबी के बारे में कुछ गलत जुमले कह दिए, किसी मुनाफिक ने, बद्दीन ने, और हज़रत अब्बास चाहते थे कि रसूल से वो जिक्र करूँ, मगर वो कहते उससे पहले नबी ने ही जान लिया कि मेरे चचा अब्बास कहने क्या आए हैं, किसी ने मेरी शान में गुस्ताखी की है। तो रावी कहते हैं फ़क़ामन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल मिंबर फ़क़ाल, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ ले गए और इरशाद फरमाया, सहाबा से इरशाद फरमाते हैं, मन आना, ऐ मेरे साहबियों बताओ मैं कौन हूँ? सुभान अल्लाह। बताओ मैं कौन हूँ? फ़क़ालू या रसूलुल्लाह अलैका सलाम। सहाबा ने किस अंदाज में अर्ज किया? कहा या रसूलल्लाह, आप अल्लाह के रसूल है और आप पर अल्लाह की तरफ से सलाम हो, आप पर सलामती है। सरकार ने इरशाद फरमाया, काल, सरकार फरमाते, अना मोहम्मद इब्न अब्दुल मुत्तलिब, मैं मोहम्मद अब्दुल्ला जिनके वालिद अब्दुल मुत्तलिब है, मैं मोहम्मद हूँ।
इन अल्लाह खलका खलका फजअलनी फी खैरिहिम फिरका। और इरशाद फरमाया सरकार ने कि अल्लाह ने जब मखलूक को पैदा किया तो मुझे बेहतरीन मखलूक में खल्क फरमाया। सुभान अल्लाह।